Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Safety and First Aid. Learning objectives, how to remain safe, safety rules at home, in the playground and on the road, and importance of first aid. The world around us can be an exciting place as long as we stay safe. Even the home can be dangerous if you don't follow the rules for staying safe. How many times have you hurt yourself due to your carelessness? देखिए आपके बहुत सारे मिस हैपनिंग, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हर जगह हो जाते हैं बिकॉज वी ऑल आर केयरलेस. अगर हम कुछ रूल्स फॉलो करें, चाहे हम घर पे हों या बाहर, अगर हम हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो हम इन सभी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं. तो इन सब के बारे में, सेफ्टी रूल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. Most of accidents happen when we are not careful about what we do. Accidents can happen anywhere, anytime, and to anyone. They can cause bruises or burns, bleeding or fractures, the loss of a body part, or even death. So safety is as important for life as eating right and keeping fit. We can keep safe and avoid accidents by being aware of our surroundings and following some simple rules. Remember, prevention is better than cure. देखिए आपके एक्सीडेंट्स कभी भी कहीं पे भी किसी भी समय किसी के साथ भी हो सकते हैं, बट अगर आप थोड़े से केयरफुल रहेंगे तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं. तो हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. लर्निंग टू अवॉइड डेंजर, सेफ्टी एट होम. We all feel safe at home, but when we take some careless steps, we get accidents at home. We should always be aware and alert about anything wrong. A slight smell of leaking gas or something burning or a little water spilled on the floor can cause accidents. We describe some simple rules to follow at home. हम सभी घर में बहुत सेफ फील कर सकते हैं, बट अगर हम थोड़े से हमने केयरलेस स्टेप्स उठा लिए तो हम घर पे भी हमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सो आपको थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा अवेयर रहना है. ओके. Always keep the floor clean and dry. Do not touch the electric appliances with wet hands. Things like toys, books, etc. should not be left scattered on the floor. All things should be arranged at proper places. सबसे पहले आपका फ्लोर हमेशा क्लीन होना चाहिए एंड इट शुड बी ड्राई. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को आपने वेट हैंड से नहीं टच करने. आपके टॉयज़ हैं या आपके बुक्स हैं, उनको हमेशा आप क्या करेंगे? प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे, क्योंकि अगर फ्लोर पे वो इधर उधर बिखरे रहेंगे तो कोई भी उसमें ट्रिप हो सकता है. Keep things like matchboxes, candles, knives, medicines, etc. away from the reach of children. Do not play with things like knives, blades and pins that can prick you. In case you hurt yourself with an iron object, you should always take tetanus injections. Matches है आपकी या कैंडल या नाइव्स या मेडिसिन, हमेशा इन चीज़ों को बच्चों के पहुंच से दूर रखना है. आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना, लाइक नाइव्स है, पेन्स हैं, ब्लेड्स हैं. इन केस अगर आप हर्ट हो जाते हैं तो किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट से अगर आपको लग जाती है तो आपको इमीडिएटली टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है. फायर सेफ्टी. फायर इज आवर फ्रेंड व्हेन इट कुक्स आवर फूड, keeps us warm during the winter and lights our way in the dark, but it is our enemy too. If it goes out of control, then it destroys the property and human life. It can reduce an entire forest to an empty land and change everything into ash. देखिए फायर हमारी फ्रेंड भी है. हम इसमें खाना बनाते हैं, ये विंटर्स में हमें वार्म रखती है, हमारे घर को हम लाइट करते हैं फायर के थ्रू, है ना. लेकिन ये हमारा दुश्मन भी है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. ये ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी सबको डैमेज कर सकता है, पूरे एंटायर फॉरेस्ट को जला सकता है, और उसकी जगह पे क्या रहेगा? नथिंग बट ऐश. Prevention. Always wear cotton clothes while standing near the cooking stove. Synthetic clothes can catch fire easily. As you are a child, before doing anything in kitchen, keep your elder with you. Do not play with matchstick and lighter. Kerosene oil should be stored safely away from any source of heat as it can catch fire easily. Turn off the regulator and gas stove when not in use. तो आपको प्रिवेंशन, बचाव कैसे करना है? हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहनना है जब भी आप कुकिंग स्टोव के पास खड़े हैं, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स में आपकी फायर बहुत जल्दी लग जाती है. क्योंकि आप छोटे हैं अभी, तो कभी भी अगर आपको किचन में कुछ करना है तो हमेशा एल्डर को अपने साथ रखें. मैचस्टिक या लाइटर से आपको नहीं खेलना है. कैरोसिन ऑयल को हमेशा सेफली स्टोर करके रखना है किसी भी हीट के सोर्स से. एंड रेगुलेटर एंड गैस स्टोव को आपको टर्न ऑफ कर देना जब उनका यूज़ ना हो. Safety on road. Roads are made for vehicles, and when we forget about the rules of the road, we meet with an accident. When we are on the road, certain rules need to be followed. Always walk on the footpath. If there is no footpath, walk to the left of the road. Cross the road only at zebra crossing. Make sure that the walk signal is green, means it is safe to cross.
Stop and look left, then right, and then to the left again before you cross the road. Be careful while you are crossing. Remember to walk and not to run. Never stick your head or hand out of a window from a moving vehicle. अब आपको रोड्स पे भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले आपको फुटपाथ पे चलना है, एंड अगर कोई फुटपाथ नहीं है तो अपनी रोड की लेफ्ट साइड चलें. रोड आपको क्रॉस करनी है जीब्रा क्रॉसिंग से, राइट, एंड मेक श्योर कि सिग्नल जो है वो ग्रीन है, तभी आप क्रॉस करें. स्टॉप एंड लुक. सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट देखना है, देन आपको राइट देखना है, देन अगेन लेफ्ट देखना है, एंड देन उसके बाद आपको रोड क्रॉस करनी है. जब कभी भी आप क्रॉसिंग करें तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है. आपको वॉक करना है, भागना नहीं है, एंड कभी भी किसी भी मूविंग व्हीकल से आपको अपना सर या हाथ बाहर नहीं निकालना है. फैक्ट फाइल. A subway is an underground path to cross the road one side to another. सबवे आपने देखा ही होगा, ये अंडरग्राउंड पाथ होता है जिससे आप रोड को क्रॉस करते हैं one side to another. Safety at school. We should follow the given rules at the school. Do not play rough games in school compound. Keep away from swings when they are in use. Do not take any sharp object to school. Never jump from a seesaw without warning your partner. Do not stand or jump on the table and chair in the classroom. If your feet slipped, you may get injury. अब आपको क्लास में या आपके स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले स्कूल कंपाउंड में कोई भी रफ गेम नहीं खेलना है. हमेशा स्विंग से दूरी बनाए के रखें जब वो यूज़ में हो. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपको स्कूल लेके नहीं जाना है. सीसो पे अगर आप खेलते हैं, राइट, तो सीसो में आपको जंप नहीं करना है बिना अपने पार्टनर को वार्निंग दिए. एंड अगर आप टेबल है या चेयर है क्लासरूम में, उस पर ना तो चढ़ना है ना ही उस पर जंप करना है, क्योंकि अगर आपका पैर स्लिप हो गया तो आपको चोट लग सकती है. Safety at the playground. We should follow the following rules at a school playground. Always wait for your turn as you play with your friends. Do not go very high on the swings as you may fall off. Never play the dangerous games like hide and seek. If you will try to hide behind the bushy parts, you may get pain through thorns. Okay. हमेशा अपनी टर्न का आप वेट करेंगे जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, राइट. स्विंग्स में अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना है क्योंकि आप गिर सकते हैं. और कोई भी डेंजरस गेम नहीं खेलना है, जैसे कि हाइड एंड सीक. आप झाड़ियों में चले जाएंगे छुपने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे आपको कांटे हो सकते हैं एंड यू मे गेट पेन. फर्स्ट एड. A doctor may not always be present when an accident takes place. After calling for the doctor, care should be taken of the injured person. This is known as first aid. It is immediate medical help given before the doctor arrives. It can save a life and reduce injury. While giving first aid, it is important to stay calm and act fast. देखिए, कभी भी एक्सीडेंट होता है तो हमेशा डॉक्टर प्रेजेंट नहीं होता, या तुरंत ही वो अवेलेबल भी नहीं होते. तो आपका फर्स्ट एड होता है. फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि जो इमीडिएट हेल्प किसी इंजर्ड पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. इससे क्या हो सकता है, हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं या इंजरी को रिड्यूस कर सकते हैं. Cuts and wounds. Wash cuts with water, then clean them with cotton soaked in an antiseptic solution like Dettol or Savlon. You could even cover cuts with clean bandages or gauze. अगर कोई कट है तो उसको पानी से धोना है, उसके बाद उसमें कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना है, जैसे कि डेटॉल है या सेवलॉन है. आप उस कट को कवर भी कर सकते हैं किसी क्लीन बैंडेज से. Burns. We get burned when we touch very hot objects. To get relief from the pain, remove the heat source, put out flames or remove clothing. For minor burns, dip the part in cold water or hold the burnt part under running water for some time. Do this at once. This cools the wound and avoids a severe burn. Minor burns heal on their own. In case of more serious burns, consult a burn specialist immediately. देखिए, बर्न आपका कब होता है, जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं. तो सबसे पहले हीट सोर्स को आपके रिमूव करना है, फ्लेम्स को बुझाना है या क्लोथिंग को रिमूव करना है. अगर माइनर बर्न है, छोटी मोटी बर्न है, तो कोल्ड वाटर में डिप करना है, ओके, या बर्न पार्ट को रनिंग वाटर के नीचे आप होल्ड करके रखें. और लेकिन इसको तुरंत करना है, एट वंस, इमीडिएटली. इससे क्या होगा कि आपको वो जो वुंड है वो थोड़ा सा कूल हो जाएगा और सीवियर बर्न सेंसेशन नहीं होगा. माइनर बर्न जो है अपने आप से हील हो जाते हैं, बट अगर सीरियस बर्न है देन इस केस में आपको किसी बर्न स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए. नोज ब्लीडिंग. इन केस योर नोज ब्लीड्स, स्टे काम एंड डू नॉट पैनिक. सिट एंड प्रेस द नोज टाइटली विद योर फिंगर्स. Keep your both nose closed tightly for 5 to 10 minutes. This stops the blood from flowing. Breathe through your mouth. देखिए, कभी भी नोज से ब्लीडिंग हो जाती है तो पैनिक नहीं करना है. सबसे पहले तो आप बैठें एंड अपने नाइट जो आपके नोस्ट्रिल्स हैं उनको अपने प्रेस करना है अपने फिंगर्स से. दोनों नोज को क्लोज करके रखना है अपने 5 to 10 मिनट्स, और इस दौरान आपने जो है ब्रीदिंग करनी है माउथ के थ्रू.
Faints. If a person faints, make him lie down for a while, keep the head low for the extra blood to reach the brain. अगर कोई पर्सन फेंट यानी बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले उसको लाई डाउन करें एंड उसका जो हेड है वो थोड़ा सा लो रखें जिससे कि एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो ब्रेन तक पहुंच सके. Sting bites. It is important to remember that bees and other insects sting only when we disturb them. If a bee stings you, try to remove the sting with a sharp object. Never pinch it as more of the poison may enter your body. You should wash the area thoroughly with water. Put ice pack for 10 minutes till burning sensation is reduced. Apply some soothing cream. A soft pad soaked in ammonia water also gives relief. Apply calamine solution if there is itching. ठीक है, आपको जैसे बीज या कोई भी इंसेक्ट होता है ये ऐसे ही नहीं काटते. अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तभी वो आपको बाइट करते हैं. अगर बी ने आपको काट लिया है तो उसका जो स्टिंग है उसको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आप निकालने की कोशिश करें. उसको पिंच ना करें क्योंकि क्या होगा कि जो ज़्यादा पॉइजन चला जाएगा. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस एरिया को वाटर से अच्छे से धोना है, आइस पैक लगाना है 10 मिनट्स के लिए जिससे कि बर्निंग सेंसेशन रिड्यूस हो सके. उसके बाद कोई सूदिंग क्रीम लगानी है, कोई भी आप एक सॉफ्ट पैड को सोक कर लीजिए अमोनिया वाटर में, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा. और कैलामाइन सोल्यूशन लगाना है अगर इचिंग है तो. समरी. By taking care, most accidents can be avoided. Accidents can be avoided on roads by following the traffic rules. First aid can give a lot of relief to accident victims. Burning, bleeding, and insect bites are few common things that may happen anywhere, so we always need first aid. Sometimes first aid can save a person's life. देखिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम केयरफुल रहें. राइट, एक्सीडेंट्स को हम हर जगह बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. जैसे रोड्स पे अगर आप सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं तो फर्स्ट एड आपका जो होता है वो किसी भी पर्सन की लाइफ को सेव कर सकता है. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आपके सारे ही सेफ्टी रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.